So boys, welcome to our third lessons or third lecture, and in chapter 1 this third lesson is about economic resources. As you well understand the meaning of resources in 8th class in Pakistan study, I have given the concepts of resources. The same concepts of resources keep in your mind and come in 9th class economics. So we have three types of resources here in economics. One is land, second is natural resources, and third is the human resources. Land is a part of resources which gives the factor of production, is the main factors in factor of production, which is used for the agriculture and cultivations. Second is natural resources. Natural resources means you well understand natural resources between the sky and down from the earth. All the things is called natural resources, and similarly the soil, similarly the sun, the moon, the light, the sky, the water, and the top surface of the land. So these are called the natural resources. And under the land, what are we have hidden natural resources, just like different types of metals, different types of minerals. So these are also included in natural resources. Now let's see the human resources. Human resources means all types of professions in our society, in a particular country, like engineers, doctors, professionals, lawyers, teachers, and laborers as well. So this is called human resources. Now next see the principles of productions. What are the principles of productions in economics? What are the principles of business in economics? There is two types of business ownership in economics. One is private ownership, second is public ownership. Private ownership means when the owner of that types of business is maybe the one person, what we call in business and economics, the one person means sole proprietorship, or maybe more than one person means partnership. So these two, or sometimes we can also say company. Company means more than two persons. So these three types of ownership is concluded in private ownership. The next is public ownership. Public ownership, when the government and the people, they both together become the owner of any types of business, is called public ownership. In this types of business, the owner is normally either the government or part of the percentage of that business is public, or sometimes 100% government. So it is called a public ownership. Now come to the next slide, the difference between private and the public ownership. Thank you. Yes boys, our next slide is the difference between the private business and the public business. Let's see one by one, and along this some headlines you can also find some pictures which can explain the detail of the picture to understand. The first one is in private business ownership, resources of productions and the process of the productions. In this private business, the owner or the sole proprietor or the company proprietor or the partnerships, they are free to use the resources of productions. Nobody can stop them, nobody can ask any questions. They are free, they are liberal. And the process of productions and production process, they will be the free to produce anything, and they can adopt any types of productions process in the first point. Second point, the factor of productions ownership.
सेकेंड पॉइंट प्राइवेट बिजनेस में ये है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 लैंड, नंबर 2 लेबर, नंबर 3 वेजेस और सैलरीज, एंड नंबर 4 इज़ कैपिटल। ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए। वेजेस का मतलब होता है उजरत, आप कितनी सैलरी किसको देंगे, किसको सैलरी कितनी नहीं देंगे, इसको हम वेजेस कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में उजरत कहते हैं या मुआवजा, कंपनसेशन, ठीक है। तो इसके अंदर ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, दे आर फ्री टू यूटिलाइज द 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस विदाउट एनी interruptions or without any restrictions of the government. They will follow the labor's law, the systems according to the government policy of the country, and they will keep their business continue. Next point is state or the government no involvement. इनके काम के अंदर प्राइवेट ऑनरशिप के अंदर स्टेट और गवर्नमेंट जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, बस ये स्टेट एंड गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक अपना बिजनेस करते हैं। बाकी स्टेट और गवर्नमेंट इनको कुछ नहीं कहती अगर वो पॉलिसीज़ के मुताबिक, यानी कोई ऐसा बिज़नेस स्टार्ट नहीं करेंगे जिसमें जो है गवर्नमेंट उनको जो है मना करेगी, जो मुआशरे के लिहाज से, आवाम के लिहाज से, मुल्क के लिहाज से वो गैर कानूनी बिज़नेस होगा, तो उसको इस्तेमाल नहीं, वो बिज़नेस नहीं करेंगे। बाकी कोई भी बिज़नेस ये कर सकते हैं और बिज़नेस की टाइमिंग को मेंटेन करते हुए। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट नंबर 4 है ब्यूरोक्रेसी। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स डू नॉट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शंस। ब्यूरोक्रेसी कहते हैं अफसरशाही को, जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, जो 17 से लेकर या 16 से लेकर 22वें ग्रेड के जितने ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, वो प्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर किसी किस्म की मदाखलत नहीं करेंगे। देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, मदाखलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक कैपिटलिज्म। इस किस्म के बिज़नेस की जो मीशत होती है माशरे, हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारी मीशत के अंदर, इकानमी के अंदर, वो सिस्टम जो होता है वो कैपिटलिज्म होता है। यानी कैपिटलिज्म से मुराद क्या है कि जिसके पास जितना पैसा है वो उतना बड़ा बिज़नेस कर सकता है, छोटा पैसा है वो छोटा बिज़नेस कर सकता है, बड़ा पैसा है बड़ा बिज़नेस कर सकता है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा, यू हैव मोर मनी यू कैन डू द मोर बिजनेस, यू हैव स्मॉल मनी यू कैन डू स्मॉल बिजनेस। सो दिस टाइप्स ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड इन इकोनॉमिक्स, और बिजनेस इज a type of business is called a capitalism business. Economy is called capitalism economy. Okay? अब आ जाते हैं हम पब्लिक ऑनरशिप। पब्लिक ऑनरशिप इसमें क्या होता है कि तमाम किस्म के रिसोर्सेस जो है वो गवर्नमेंट और पब्लिक की जो है वो रिसोर्सेस होते हैं तमाम। इसके अंदर तमाम किस्म के लोग जो पार्टनरशिप्स होते हैं, जो ऑनर्स होते हैं, या तो वो गवर्नमेंट होगी या फिर आवाम होगी, पब्लिक होगी। वेलफेयर इन फोकस, इस टाइप के बिज़नेस के अंदर जो है मेन जो मकसद होता है, टारगेट होता है कि वो आवाम की वेलफेयर के लिए बिज़नेस शुरू करें। इसमें कंपटीशन नहीं होता कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का, क्योंकि इसका ऑनर जो है वो एक ही होता है, ठीक है, वो अपनी मर्ज़ी से है बिज़नेस को लॉन्च करता है, और जो भी इस बिज़नेस से बेनिफिट उठाना चाहता है वो जो बिज़नेस लॉन्चर होता है, यानी पब्लिक ऑनर जो होता है, गवर्नमेंट जो होती है, उसके मुताबिक उस बिज़नेस से मुस्तफ़ीद होने में, फ़ायदा उठाने में, एडवांटेजेस लेने में इंडिपेंडेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी एग्ज़ाम्पल ये है, के इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है, पाकिस्तान रेलवे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, PIA गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। जिसने PIA पे सफ़र करना है तो उसने PIA के रूल्स रेगुलेशंस और उसकी प्राइस के मुताबिक फ़ॉलो करना है। इसी तरीके से रेलवे पे जिसने सफ़र करना है उसने जो टिकट गवर्नमेंट फिक्स कर दे उसके मुताबिक फ़ॉलो करना है। कोई इसमें कंपटीशन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान रेलवे का दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है वो अजारादारी होती है, मोनोपोली होती है, इसमें ज़्यादा मार्केट्स, ज़्यादा इसमें ऑनर्स नहीं होते हैं। प्राइस डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट, प्राइस जो है वो, इसके अंदर प्राइस जो है वो गवर्नमेंट डिटरमाइंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक रन बाय द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट और द बिजनेस रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये बिज़नेस जो है वो गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक जो है रन किया जाता है। गवर्नमेंट इस टाइप के बिज़नेस को चलाने के लिए पहले एक पॉलिसी बना देती है, एक सिस्टम बना देती है, उसके मुताबिक बिज़नेस रन होता है। थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड बॉयज़, टॉपिक है कैपिटलिज़म। कैपिटलिज़म का मतलब होता है सरमायादाराना निज़ाम, यानी रुपया का निज़ाम, कैपिटल का निज़ाम, ऐसा निज़ाम जहाँ पर
जिसके पास ज़्यादा पैसा है वही आगे तरक्की करेगा, वही आगे चलेगा। ये निज़ाम दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में इस वक्त चल रहा है। इस वक्त ये अमेरिका में चल रहा है, कनाडा में चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, न्यूजीलैंड में चल रहा है, ठीक है, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ में ये निज़ाम चल रहा है। इस निज़ाम के तहत होता क्या है कि जो हमारा प्रोड्यूसर यानी चीज़ों को पैदा करने वाला यानी कंपनी लगाने वाला, फैक्ट्री लगाने वाला जो भी शख्स होगा, उसके पास जितना पैसा होगा वो उतनी बड़ी फैक्ट्री लगा सकता है, जितना छोटा पैसा होगा उतनी छोटी फैक्ट्री लगा सकता है, या कारोबार कर सकता है, या बिज़नेस कर सकता है। तो एक ऐसा निज़ाम जहाँ पर जिसकी इकानमी, जिसकी मईशत पैसे पर बेस कर रहे, कैपिटल पे बेस करे, ठीक है, जहाँ पर तमाम रिसोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन वो कैपिटल पे हों और प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन वो भी कैपिटल बेस कर रहा हो और मकसद ही सिर्फ कारोबार का पैसा कमाना हो, तो उस निज़ाम को, उस मईशत को, उस सिस्टम को हम कैपिटलिज़म कहते हैं। अब कैपिटलिज़म के करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें पाई जाएंगी जिससे हमें पता चलेगा कि ये निज़ाम जो है वो कैपिटलिज़म है। नंबर 1, अपॉर्चुनिटी टू रन द बिज़नेस इंडिविजुअली। ये एक ऐसा निज़ाम होता है कि जिसमें एक इंडिविजुअल शख्स, एक शख्स को मौका मिलता है कारोबार करने के लिए, यानी उसके पास अगर पैसा तो कारोबार करने के लिए उसके पास मौका है। नंबर 2, परफेक्ट कंपटीशन इन बिज़नेस। इसके अंदर एक शख्स का दूसरे शख्स का कारोबार में किसी चीज़ को सेल करने के लिए आपस में कंपटीशन होता है। मिसाल के तौर पर बहुत सारे, एक छोटी सी मिसाल लेते हैं हम आम कॉमन मार्केट की। आम बेचने वाले बहुत सारे जो हैं रेडी वाले हैं, उनका आपस में कंपटीशन होता है कि सबकी प्राइस एक जैसी हो और क्वालिटी बेहतर हो। तो जिसकी क्वालिटी बेहतर होगी और प्राइस एक जैसी होगी, सबकी एक जैसी प्राइस होगी, तो आदमी वहीं से ख़रीदेगा। नेक्स्ट है, इस सिस्टम का तीसरा जो करैक्टर है वो है कैपिटल। यानी अगर कैपिटल है तो ये इस सिस्टम की पहचान होती है। अगर कैपिटल नहीं है तो वो इस सिस्टम में नहीं आएगा। इस सिस्टम के अंदर जो चीज़ों की कीमतें, मार्केट के अंदर किसी भी चीज़ की कीमत जो है वो डिमांड और सप्लाई की मार्केट से होता है। यानी जितनी डिमांड होगी, जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई की जाएगी, ठीक है। कम डिमांड होगी तो कम सप्लाई होगी, और अगर सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड कम है, तो चीज़ों की कीमत गिर जाएगी। तो इसलिए डिमांड के मुताबिक ही सप्लाई की जाएगी, ज़्यादा नहीं की जाएगी, ना ही कम की जाएगी। नेक्स्ट है, कैपिटलिज्म डिवाइड्स द सोसाइटी इंटू डिफरेंट क्लासेस बेस्ड ऑन कैपिटल। कैपिटलिज्म जो है वो मुआशरे को वो मुख्तलिफ क्लासेस में तकसीम कर देता है कैपिटल की बेस पर। यानी जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो अपर क्लास है, जिसके पास कम पैसा है वो अपर लोअर क्लास है, फिर जिसके पास बिल्कुल एवरेज पैसा है वो मिडिल क्लास है, जिसके पास एवरेज से भी कम है वो लोअर मिडिल है, ठीक है, और जिसके पास बहुत ही कम पैसा है वो लोअर क्लास हो गई। तो 5 क्लासेस में जो है ये कैपिटलिज्म जो है वो हमारे इकानमी को, मईशत को, सोसाइटी को, मार्केट को डिवाइड करता है। तो एक ऐसा निज़ाम जहाँ पर टोटली बेस कर रहा हो वो सिस्टम कैपिटल पर, ठीक है, और वो सिस्टम जो है वो जितने कैपिटलिस्ट होते हैं उसको अप्रिशिएट कर रहा हो, उसको इनकरेज कर रहा हो, ठीक है, तो उसको हम कैपिटलिज्म कहते हैं। Capitalism is an economic system in which the free market alone controls the production of goods and services. Its key features include open competition, the profit motive of producers, and private ownership of property. Capitalism stands in direct contrast to government-controlled economies, where production and prices are set by a central decision-making body. As a system based on free markets, the prices of various goods are negotiated between the buyer and seller. Because producers have an incentive to maximize profit, they tend to provide items that are relatively scarce and therefore attract a higher price. Economist Adam Smith argued that this profit motive actually benefited society at large. He compared free markets to an invisible hand, pushing producers towards goods and services for which there is greatest need.
Timothy, a farmer, initially wanted to plant corn in the spring, but an oversupply around the world has lowered prices. Instead, he decides to plant soybeans, which are more profitable because of a smaller supply relative to demand. If too many producers make the same decision as Timothy, the free market will correct itself. Soybean prices will go down, and farmers will choose to focus on another crop, or perhaps go into another line of work altogether. Advocates of capitalism believe this system is significantly more efficient than a centrally controlled economy. However, critics suggest that it can also lead to wealth being concentrated in a relatively small segment of the population to the detriment of other groups. In reality, a purely capitalist system is hard to find. Even in the United States, for example, the government subsidizes certain industries for social and political reasons. But in most transactions, the only thing controlling the price is the consumer's willingness to buy. Capitalist economies share several traits. First, there's the two-class system. The capitalist class owns the means for producing and distributing goods, and the working class sells labor to the capitalists in exchange for wages. A third class, known as the middle class, comes from a division of labor that promotes specialization through training and education. Capitalists also share profit motive, since companies must make and sell goods and services to profit. Capitalist societies theoretically believe markets should operate without government intervention. But even in the United States, the Dodd-Frank Act uses federal regulations to keep an eye on companies that are deemed too big to fail. True capitalism also requires a competitive market. Without competition, monopolies emerge and the seller sets prices rather than the market. Capitalism has the ability to adapt and change. Technology is the game changer, and the willingness to adapt enables capitalist societies to operate effectively.